Hello, everyone. Good evening from Pakistan, and good morning and good afternoon to all who are joining from different time zones. Thank you for joining us in our 12th free webinar. और इस बार हम introduction to blockchain in finance लेके आए हैं. With the association of Pakistan Blockchain Institute, and we are very thankful to Mr. Ahmed Manzoor Saab for giving us his precious time, definitely. मैं just quickly run through कर देता हूँ चीजों को. So there are certain few things. If you have any question, अगर आपके कोई भी question है तो जरूर why not आप उसको comments में लिख लीजिए और at the end हम उस questions को क्यू करके आपको आंसर दे देंगे. और at the end of the session हम तकरीबन 10 से 15 मिनट का सेशन रखेंगे क्वेश्चन और आंसर का. सो आप उसमें भी क्वेश्चन और आंसर पूछ सकते हैं. और मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप सब अपने जो माइक्स हैं वो म्यूट रखें. सेकेंड, जस्ट हैव a quick background of myself, and then the show is all about our expert. So this is Mohammed Kashif. I'm an expert in finance, and I have almost more than 17 years experience in quite all fields which touch finance. और finance हर चीज को business में touch कर रहा होता है. I'm also a founder of Kaizen Analytics LLP, and we work in various emerging technologies, BI, blockchain, IoTs. हम capacity building और project implementation में भी काम करते हैं. A short about this one is myself, and now the show is definitely of Mr. Ahmed Manzoor Saab. We are very grateful to him to share his knowledge with us. आप देख सकते हैं एक बहुत अमेजिंग लिस्ट है क्रेडेंशियल पे अहमद मंजूर साहब की. इज अ फाउंडर सीईओ ऑफ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, ANZ टेक्नोलॉजीज, पाकिस्तान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एकेडमी, पाकिस्तान ब्लॉकचेन रिसर्च सेंटर. He is a CTO for Blockchain Center of Pakistan, ex-member of KPK Advisory Board for Digital Currency, Token Economy, Crypto Economy, Certified Blockchain Trainer, lead trainer for Presidential Initiative for AI and Computing, lead blockchain trainer for Pakistan Software Export Board, co-founder at Immutus Advisory, board member of Arab M-Tech Conference, fellow researcher and expert at Digital Euro, more than 21 experience in ICT solutions, Cisco, Jupyter, IBM, Oracle certified, and many things. Certified in Linux Foundation, like CBBF. So in सारी words का खैर वो अहमद मंजूर साहब ज्यादा डिटेल में बता सकेंगे. So अहमद मंजूर साहब, over to you. आप शो आपका है. It's up to you. अस्सलाम वालेकुम everybody. I hope you have seen. आपको मेरी जो है ना नजर आ रही होगी, स्क्रीन नजर आ रही होगी. अच्छा, इसको उर्दू में करने का एक मकसद है for our international guys that we are starting this thing in Urdu, basically to make everybody to understand who is from Pakistan and who understand Urdu. So because blockchain is concept basically is quite complex, so we are going to use this knowledge to convert it to in our own language. So that's why I am providing everything in Urdu. That's why I'm using Urdu. Okay, but bear with us and we will provide you so we can discuss everything in the end, inshallah. So अच्छा जी, मेरा जी टोटल 21 साल का एक्सपीरियंस है आईसीटी इंडस्ट्री में, और मेरा मेन जो फोकस रहा है वो हमेशा रहा है अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 21 साल का आईसीटी इंडस्ट्री का, और 18 साल जॉब की है डिफरेंट बहुत सारी जगहों पे, जिनमें पीटीसीएल है, वतीन टेलीकॉम है, इत्तसलात है और इन्फोटेक, नेशनल इंजीनियर, बेतहाशा कंपनीज हैं. पिछले 4 साल से मैं ब्लॉकचेन में काम कर रहा हूं और डिफरेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में बात करता हूं, और फ्यूचरिस्ट बेसिकली आप लोगों ने शायद एक टर्मिनोलॉजी सुनी हो कि फ्यूचरिस्ट होता है कोई बंदा. सो आई एम अ टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्ट हु प्रेडिक्ट टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, नेक्स्ट 10 to 20 इयर्स के आगे क्या होने वाला है. दैट तो ये सारा काम मैं कर रहा होता हूँ. 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ
पढ़ा भी रहा हूँ, ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। और किस तरीके से, इसी तरह वो पहले काशिफ भाई ने बताया कि मैं पीआईएससी का जो है उसका भी पार्ट हूँ। पीआईएससी भी कहीं पे जहाँ पे आपको ब्लॉकचेन या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहीं पे सुनने को मिलेगा, स्पेसिफिकली 5G और ब्लॉकचेन, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं मैं बीच में नजर आ जाऊंगा। आज का जो सेशन है, बेसिकली जिस तरह मैंने शुरू में बात की, इसको मैं उर्दू में इसलिए बात करूंगा बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम उसको उर्दू में ही कंटिन्यू करेंगे। उसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ऑलरेडी जो है ना बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है और इंसान लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर। तो इसलिए जो है उसको हमने फाइनल ये किया, मैंने और काशिफ भाई ने, कि ठीक है इसको हम उर्दू में इसके अंदर जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटा सा, इसको आप ये कह लीजिए कि एक रिव्यू रहेगा जो आपकी सोच को चेंज करेगा कि जी फाइनेंस के जो प्रोफेशनल्स हैं वो ब्लॉकचेन में कैसे आ सकते हैं। यानी सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि यार हमें तो प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, क्या करें, हम तो फाइनेंस के लोग हैं, मेरे पास ऐसी बहुत सी क्यूरीज आती हैं, या जी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारी क्यूरीज आ रही होती हैं। तो इसलिए जो है ना हम लोग एक्चुअली इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेके चलेंगे कि फाइनेंस को समझाना, कि फाइनेंशियल जो फाइनेंस का बंदा है जिसने एसीसीए किया हुआ है या सीए किया हुआ है, या कोई भी उसके पास फाइनेंस की डिग्री है, लाइक एमबीए फाइनेंस है, लाइक कॉमर्स का कोई बंदा है, तो वो ब्लॉकचेन में कैसे आ सकता है। हाँ, इसमें क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज्यादा बात नहीं होगी, बिकॉज ब्लॉकचेन की जब भी हम बात करते हैं ना, तो वो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम जो है शायद ट्रेडिंग सिखाने लगे हैं और इस तरह की चीज करने लगे हैं। तो वो हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और कैसे आप लोग इसका पार्ट बन सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। तो उसके ऊपर बात हो रही है, कुछ यूज केसेस पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो कुछ मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं, यानी कुछ बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत सारे लोगों ने फैलाई हुई हैं ब्लॉकचेन के हवाले से, कि जब भी आप किसी को जाके ब्लॉकचेन की बात करने लगते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है कि ये बंदा तो यार बिटकॉइन की बात करने आया, या ये क्रिप्टो करेंसी की बात करेगा, या ये मुझे कोई ना इन्वेस्टमेंट प्लान दे देगा। तो ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है सिर्फ, वो उससे भी बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी है। अभी आगे चल के मैं और बताता हूं आपको कि क्या होगा उसके अंदर, लेकिन ब्लॉकचेन अपने आप में एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, डिटेल में भी बात करते हैं इसके ऊपर। तो सिर्फ ये बात कि ये सिर्फ बिटकॉइन है, नहीं, ये सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, ये उससे बहुत बड़ी चीज है। यानी कि अगर मैं मिसाल दूं कि ये इंटरनेट है, जैसे आप में, चले एक मिसाल देता हूं छोटी सी, कि आप में से जो लोग पुराने होंगे या मेरे एजमेट्स होंगे, उन्होंने देखा होगा कि जी जब ईमेल आई थी, तो ईमेल जो है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि पहले, उससे पहले खत लिखा करते थे हम, हमारे जितने लोग बाहर होते थे उनको हम खत लिखते थे, वो एक हफ्ता खत जाने में लगता था, एक हफ्ता वापस आने में हमें वो लग रहा होता था, तो तकरीबन 15 दिन का एक प्रोसेस था जिसको ईमेल सेकंड्स में ले आया था। तो इसलिए एक बहुत बड़ी, तो क्या मैंने इंटरनेट, जब ईमेल यूज की मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या मैंने पूरे का पूरा इंटरनेट यूज कर लिया? नहीं, उसके बाद उसके मेन यूज केसेस बनने शुरू हुए। आज हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, तो हमारा पूरे का पूरा जो क्लस्टर या स्ट्रक्चर बन गया, वो अब हम इंटरनेट से 24/7 कनेक्टेड होते हैं। तो इसी तरह से बिटकॉइन एक छोटा सा यूज केस है। यानी अगर ये इंटरनेट है, इंटरनेट में ये सोशल मीडिया में ये ईमेल, याहू याहू के अंदर ये एक छोटा सा ईमेल का मेरा अकाउंट, ब्लॉकचेन, फाइनेंस का सेक्टर, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज, और उसके अंदर बिटकॉइन। तो अगर उस पूरी को कह दिया जाए कि ये बिटकॉइन, या मैं ये कह दूं कि ईमेल जो है वो जी ब्लॉकचेन है, सॉरी इंटरनेट है, यानी ईमेल फुल यूज था इंटरनेट का, तो ज्यादती होगी इंटरनेट के साथ। इसी तरह बिटकॉइन फुल यूज है ब्लॉकचेन का, ये ब्लॉकचेन के साथ ज्यादती है। ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। देन blockchain.com एक वेबसाइट है, जिसको नॉर्मली लोग क्या कह रहे होते हैं कि जी ये जो है ना मेरे ब्लॉकचेन पे पैसे फंस गए, मुझे बताएं। तो blockchain.com एक ट्रेडिंग वेबसाइट है, ब्लॉकचेन नहीं है वो। अभी आगे चल के जब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ने शुरू करेंगे तो उन पे बात करेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्यों, यानी मैंने ये जो बात की है अभी, ये कैसे वो हो जाती है। ब्लॉकचेन आप अपना बना सकते हैं जब हम प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात करते हैं। अभी आगे चल के मैं से बात करता हूं, क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बनी है? नहीं, ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए नहीं बनी। जहां पे आपको रिकॉर्ड्स किसी भी उसमें रखने ना, वो सप्लाई चेन हो,
देन कोई भी ऐसी चीज हो तो फिर जो है उसको जो है ना वो किया जा सकता है, राइट। वहां पे आप ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी आपने ब्लॉकचेन जो है ना बस वैसे ही यूज कर लिया कि वो सिर्फ जी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, इसमें तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, नहीं, जहां पे आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी है वहां पे आप ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जी मैं तो अपना कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी ब्लॉकचेन पे रखूंगा तो पूरी दुनिया देख लेगी क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ऐसा नहीं है। वो एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ आपका जो है ब्लॉकचेन के ऊपर वो चीज पड़ी होगी, जो इवन आपने भी अगर उसको एक्सेस करना तो आप उसको की देंगे, तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो किसी और जगह है, किसी और के पास, तो उसको आपकी की चाहिए होगी या आपकी इजाजत चाहिए होगी उसको ओपन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने इंफॉर्मेशन रख दी तो जी वो कोई भी उसको यूज कर सकता है। देन एक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इसके अंदर। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अभी तक कोई लीगल, हमारे यहाँ एक्चुअली होता है ना कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं ना तो आपके जहन में सबसे पहले एक चीज आती है कि शायद किसी लीगल वैल्यू की बात हो रही है। तो लीगल वैल्यू जो है बेसिकली वो ऐसा नहीं है कि आपका जो है ना उसके अंदर उसकी कोई लीगल वैल्यू, वो एक लाइन ऑफ कोड है जो ऑटोमेट कर देता उस सारी चीज को, जो या अगर और मैं इसको आसान अल्फाज में कहूं तो ऐसा प्रोग्राम जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन होता है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ब्लॉकचेन सिर्फ पब्लिक होता है नहीं, ब्लॉकचेन प्राइवेट सेक्टर में भी, यानी कि आई मीन उसके प्राइवेट यूज केसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाना है तो वो उसके लिए एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बन रहा होगा, जो कि यानी नॉर्मली हम उसको हाइपरलेजर या और किसी ऐसी ब्लॉकचेन के अंदर उसको यूज कर रहे होते हैं। तो सिर्फ पब्लिक नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि ये एक इंटरनेट लेवल की चीज है, जैसे मैंने ईमेल की मिसाल दी थी आपको। तो ईमेल और स्ट्रीमिंग मीडिया, यानी कि देखें सबसे पहले ईमेल आई तो ईमेल मशहूर हो गई कि जी ये तो ईमेल तो पता नहीं क्या भला होती है। यानी इसी तरह हुआ कि वो सेकंड्स में एक चीज जो है वो दूसरी जगह तक, आपके दूसरे किसी वहां तक पहुंचना शुरू हो गई, खत। यानी जिसको हम पहले 15 दिन का एक प्रोसेस, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि 15 दिन का प्रोसेस है, तो वो फौरन पहुंचनी शुरू हो गई, आगे से रिसीट आनी शुरू हो गई। तो दैट मीन्स, लेकिन क्या मैंने वो पूरा इंटरनेट यूज कर लिया? नहीं। उसके बाद स्ट्रीमिंग मीडिया का दौर आया जो कि 2007 2007 2006 में आया। उसके अंदर स्ट्रीमिंग मीडिया था जिसमें यूट्यूब आ गया, आपका आईपीटीवी आ गया। अदरवाइज उससे पहले लोग छोटे टीवी लेके फिर रहे होते थे और जिसको बहुत ज्यादा लोग कहते थे कि पता नहीं क्या चीज है। आजकल जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया का दौर है। हर इंसान, एवरीबडी इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट एट एवरी टाइम। बेसिकली हर टाइम पे हर बंदा इंटरनेट से कनेक्टेड है। देन इसी तरह ब्लॉकचेन का जो पहला यूज केस बना वो था बिटकॉइन। उसको एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए उन्होंने क्रिएट किया। आजकल सारी दुनिया सीबीडीसी पे बात कर रही है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज। देन उसी तरह लोग अपनी डिजिटल करेंसी बनाना चाह रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। आप जो फाइनेंस के लोग हैं उनको ये समझना जरूरी है कि क्यों आप अपनी करेंसी, यानी पाकिस्तान को अपनी करेंसी बनानी चाहिए, रादर देन के वो एक थर्ड पार्टी चीज को समझे कि जी शायद वो मेरी तकदीर बदल देगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं होने वाला। देन एक और चीज इसके अंदर याद रखिए कि जो लोग कहते हैं ना कि जी ब्लॉकचेन का एक बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा यूज केस है, आपने कई लोगों को, कई इन्फ्लुएंसर्स को आपने कहता हुआ सुना होगा ये बात। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं। अभी आगे, यानी पूरी दुनिया में बिटकॉइन कितने लोग यूज करते होंगे आपके ख्याल में? 7% या 8% लोग, पूरी दुनिया के अंदर की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी जाए, जो कि आपकी यूनिक आइडेंटिटी, जैसे ये अहमद मंजूर जो आपके सामने बैठा हुआ है, ये पूरी दुनिया में यूनिक है। मुझे तौकीर रिजवी साहब नजर आ रहे हैं यहाँ पे, वो पूरी दुनिया में यूनिक है। लेकिन अभी वो इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते कि वो पूरी दुनिया में यूनिक है। तो अगर वो एक यूनिक आइडेंटिटी उनको ब्लॉकचेन पे मिल जाए, जहां से ना चीजें डिलीट हो सकती हैं ना चीजें अपडेट हो सकती हैं, तो तो अब आप सोचिए पूरी दुनिया की आइडेंटिटीज वहां पे आ जाएं अगर विद यूनिक आइडेंटिटी, तो वो सबसे बड़ा यूज केस बन जाएगा। सेकंड सबसे बड़ा यूज केस बनेगा सप्लाई चेन का, देन बनेगा फाइनेंस का, क्योंकि सप्लाई चेन और फाइनेंस आपस में कनेक्टेड है।
तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ब्लॉकचेन के अंदर अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। यानी आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि जी ये तो हम इसमें देर से आ रहे हैं। असल में ब्लॉकचेन 2015 में स्टार्ट हुई है जब इथीरियम मार्केट में आया। उससे पहले ब्लॉकचेन सिर्फ बिटकॉइन हुआ करता था, लोग उसी को सारा कुछ करते थे और कुछ भी नहीं था। तो असल में जो एप्लीकेशन इसके ऊपर रखनी शुरू हुए हैं ना ब्लॉकचेन के ऊपर, वो हुए 2015 के अंदर, 2016 2015 2016 के अंदर। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज किस तरीके से काम कर रही है। अभी तो 6-7 साल हुए हैं सारे के सारे, लेकिन हमें इसे अडेप्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक और चीज है जो बेसिकली, एक सेकंड, ओके, कि आपकी जो बैकएंड टेक्नोलॉजी है ना, इंटरनेट की बैकएंड टेक्नोलॉजी है, अब बाकी तमाम टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही हैं उसके ऊपर, आगे से आगे जा जाए कि जी स्ट्रीमिंग मीडिया भी, हमने ईमेल की बात की, फिर स्ट्रीमिंग मीडिया, फिर सोशल मीडिया, और आगे चलते जा रहे हैं। तो इंटरनेट वहीं का वहीं खड़ा रहा, बाकी तमाम चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। इसी तरह ब्लॉकचेन जो है वो साथ साथ चलेगा साइमल्टेनियसली, बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर मैं जैसे प्रेडिक्शन की बात करता हूं, तो अभी अगले 2 साल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हैं, जिधर से डेटा सारा फेच होना है। देन इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आएगा, उसके बाद एआई आएगा, फिर उसके बाद और बाकी सारी चीजें। आजकल आप मेटावर्स बड़ा सुन रहे हैं, लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेटावर्स क्या बुला है। कुछ भी नहीं है, एआर वीआर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग लाहौर से हैं तो जाके वो एम्पोरियम में मशीन पड़ी हुई है पूरी एआर वीआर की गेम की, वहां पे जाके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ फर्क यह है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। फिर इसी तरह ये तमाम इसी यानी इंटरनेट बैकएंड पे है, तो बेसिकली ब्लॉकचेन के तमाम यूज केसेस वो बन सकते हैं जो इंटरनेट के यूज केसेस हैं। यानी कई दफा इस तरह क्वेश्चन आता है कि सर ब्लॉकचेन यूज कहां कहां हो सकता है, तो ब्लॉकचेन हर उस जगह यूज होता है जहां पे इंटरनेट यूज हो सकता है, और इंटरनेट हर जगह भी यूज हो सकता है। तो इसी तरह जहां पे आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी है वहां पे आप इसको वो कर सकते हैं। ब्लॉकचेन क्या है, हम इसका अगर हेलीकॉप्टर व्यू में एक व्यू लेते हैं कि जी ब्लॉकचेन क्या चीज है, तो ब्लॉकचेन एक म्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। चलें एक और चीज ऐड करते हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। यानी आप उसमें डेटा ऐड तो कर सकते हैं, डिलीट और अपडेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन आता है किसी ने अपडेट करना तो क्या करें? अपडेशन क्या होगी? जैसे अहमद मंजूर, इसका एड्रेस ये है, ठीक है जी, अब उस एड्रेस को अगर मैंने अपडेट करना तो क्या करूं? तो वो नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा पूरे का पूरा। ये ब्लॉकचेन का, क्योंकि मैं कल को मुकर नहीं सकता कि जी ये जो है ना यहाँ पे मैं नहीं रहता था, यहाँ पे तो कोई और रहता था। तो हम उन चीजों को ट्रांसपेरेंट करना शुरू हो गए पूरी चीज को। जो जो आगे जाते हैं आपको ये मेरा जुमला और समझ में आएगा। सवाल ये है कि इसको ना याद रख लीजिएगा इस पूरी चीज को अपने पे। जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं ब्लॉकचेन के अंदर, पुरानी कुछ टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। देखें जब भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, हमेशा याद रखिएगा पुरानी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही होती है, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, अगला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगले हाफ टाइम में आगे चला जाता है, यानी कि वो उसको बेहतर बनाते हैं। जैसे क्लाउड, उससे पहले डेटा सेंटर्स बने, उससे पहले कनेक्टिविटी आई, अब क्लाउड फौरन आना शुरू हो गया। देन उससे जो अगली चीज है वो फौरन आनी शुरू हो जाएगी, जो भी आप उसकी किसी भी टेक्नोलॉजी का नाम लें। तो इसी तरह यहां पे 3 टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी जो पिलर्स हैं बेसिकली ब्लॉकचेन का। एक है लेजर, जो कि 7-8 हजार साल पहले यूज हुई, हम उसको सारा टाइम यूज कर रहे होते हैं। अगर आप एक दफा उसको सोचें, आपके पास एक ब्रेन की तरह ब्रेन में लेजर मौजूद है जिसके अंदर आप सारी चीजें नोट कर रहे होते हैं। तो ये एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ये हमारे पास ऑलरेडी चीजें चल रही हैं। या लेजर का अगर, क्योंकि आप लोग फाइनेंस के हैं तो आपको मेरे ज्यादा इस चीज का पता होगा कि लेजर वो जो जब आप किसी दुकान से बाहर निकलता है, वो एक बुक निकालता है, उसमें लिखता है कितना क्या परचेज किया, कितना प्रॉफिट था, कितने यूनिट बाकी रह गए। सो दैट इज बेसिकली लेजर, द रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। देन है क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी एक बड़ी मेजर चीज है ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि ये आपको एक बड़ा सिक्योर सिस्टम दे रही है। वो जो मैंने अभी बात की ना, तमाम आपका जो होगा उसके अंदर क्रिप्टोग्राफिक लेवल पे चीज एंटर हो रही होगी। दैट मींस कि जी आपका पूरे का पूरा डेटा जो है वो एक किसी यानी कह लीजिए कोड के साथ वहां पे मौजूद है।
अब उसको ओपन करने के लिए दे नीड योर की, दैट यूनिक की जिसकी अभी मैंने बात की थी, वो यूनिक की रिक्वायर्ड है ताकि वो उस डेटा को देख सके। आप भी उस डेटा को देखने के लिए आपको यूनिक की देनी पड़ेगी। तो ये क्रिप्टोग्राफिक एक पूरा जो है उसके अंदर सिस्टम चलता है, जो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ। अगर उससे भी पीछे जाएं तो इजिप्शियंस इसको यूज करते थे। आज अब उसको इजिप्शियंस कैसे यूज करते थे कि जी उन्होंने आपस में जो पैगाम भेजना होता है, या आप इसको मिसाल ले लें, अगर कंपनी के अंदर ही किसी ने कोई चीज भेजी, अगर कंपनी ने अंदर ही किसी ने कोई चीज भेजनी है, तो वो आपस में जो है ना साइफर के थ्रू और कोडिंग के थ्रू चीजें भेज रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली क्रिप्टोग्राफी, सीक्रेट मैसेजेस। देन कंप्यूटर नेटवर्किंग, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, जिसमें एवरीबडी इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड ऑल द टाइम, यानी इसको हम मैश नेटवर्किंग भी कहते हैं, जिसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। सो दैट इज बेसिकली ताकि आपको आपके डेटा की अवेलेबिलिटी 99.99999% रहे, या शायद 100% को भी अचीव कर दें इस टेक्नोलॉजी को लाने के बाद, कि आपको जब भी उसको डेटा को देखना है तो जरूरत ही ना पड़े किसी और के पास जाने की। आपको आप बस जो है आपने क्लिक किया, फौरन आपको देखें। जब आप क्लाउड पे जाते हैं ना, तो आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं या और Amazon ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये तमाम चीजें आप यूज करते हैं, तो इसके लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जी लोग, कि मेरा जो डेटा है ना वो मुझे फॉरेन एक्सेसिबल हो जाए। अब आपको नहीं पता आपका गूगल ड्राइव का डेटा पाकिस्तान के किसी सर्वर पे सेव है, सिंगापुर में सेव है, दुबई में सेव है, या सैन होजे में सेव है। वो आपके लिए एक्सेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि मैं जब भी उसको डाउनलोड करा, जो फौरन डाउनलोड हो जाए चीज, ऐसा ना हो कि मुझे 10 घंटे इंतजार करना पड़े। तो ये सेम टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज हो रही है, जिसमें डेटा सारा टाइम अवेलेबल रहेगा। इसकी एक और अगर मैं बात करूं कि ब्लॉकचेन को ब्लॉक जो है चेन क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ब्लॉक के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप का डेटा है, जो कि यानी सपोज कर लेते हैं एक ब्लॉक तब फुल हो जाता है जब उसके अंदर 1 MB का डेटा आता है, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। 1 MB के डेटे के बाद एक ब्लॉक फुल हो जाता है, देन अगला ब्लॉक बन जाता है, उससे बाद अगला ब्लॉक। अच्छा, अब वो क्या करता है, वो अपना जो है ना एक इंफॉर्मेशन, यानी अपना एक कोड अगले ब्लॉक से शेयर कर देता है, जिसको हम क्रिप्टोग्राफिकल हैश कहते हैं। अभी इसकी डिटेल में ना जाइएगा, ये यानी इस पे बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो वो क्रिप्टोग्राफिकल पासवर्ड कह लें, अभी आप हैश का वर्ड छोड़ दें, क्रिप्टोग्राफिकल यूनिक पासवर्ड जो है वो उससे शेयर करता है अपने अगले ब्लॉक से, जो उन दोनों ब्लॉक्स को का कनेक्शन बेसिकली बिल्ड कर देता है। अब वो जो क्रिप्टोग्राफिकल पासवर्ड उसने शेयर किया, वो बनता है जो डेटा उसके अंदर पड़ा होता है ना, उसकी बेस पे। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि जी ब्लॉक नंबर 43 और 44 के दरमियान में एक चेन, उन्होंने अपना एक क्रिप्टोग्राफिकल हैश पासवर्ड शेयर किया एक दूसरे से। अब सपोज करें एक बंदा आता है, वो फेच करता है अंदर से एक ब्लॉक के, मैं इसको चेंज करता हूं। अब जब उसको चेंज करना शुरू करेगा ना, अब क्या होगा, उसने चेंज किया, उसका टाइमलाइन और डेटा वगैरह कुछ चीज चेंज हुई, वो दोबारा उसको पुट इन नहीं कर सकता उस पूरे डेटा को। यहां से ये डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। यानी आपको, अच्छा यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि जी अच्छा अगर तो इतना सिक्योर है, तो ये जो लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी चोरी कर लेते हैं, वो क्या सीन है? वो सीन ये है जी कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया है ना, या वो जो थर्ड पार्टी एक ने जो प्रोग्राम लिखा है, वो फ्लॉ उसके अंदर है। तो ये इसको इस तरीके से याद रखिएगा हमेशा कि ये सिस्टम फ्लॉलेस है, लेकिन उसके अंदर लोग फ्लॉज डालते हैं। इसीलिए हमें अपने सीबीडीसी क्रिएट करने पड़ेंगे जो एक रेगुलेटेड पूरे का पूरा सिलसिला हो, ताकि जिसमें आप लोग फाइनेंस के लोग जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको जो है ना समझ सकते हैं। देन इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज का। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ऐसा ही है। तो जो सेंट्रलाइज्ड है, जब भी किसी कोई डेटा आपके किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे पड़ा होगा ना, बंदा, कोई भी बंदा जो है सेंट्रलाइज जो अथॉरिटी है वो ब्लैकमेल कर सकती है। लाइक गूगल ड्राइव की भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे पड़ा हुआ है, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी है उसके पीछे।
वो कहती है कि जी मुझे इतने पैसे आप दे दें, फिर आप इस डेटा को एक्सेस कीजिएगा। अब आप मजबूर हैं, आपका तो डेटा पड़ा हुआ है, तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। देन तो डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है कि डेटे की सेम कॉपी, नॉट मिरर कॉपी, सेम कॉपी विद द सेम थिंग्स, वो डिफरेंट डिसेंट्रलाइज लोकेशंस पे पड़ी होती है। सपोज कर लेते हैं यहां पे हम 25 लोग कनेक्टेड हैं, तो हर डेटा की, मेरे डेटा की कॉपी या मेरी वो जो आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा था, वो कॉपी बाकी तमाम 24 लोगों के पास भी पड़ी होगी। अब उससे क्या होगा, मुझे डेटा एक्सेस करना है अपना, या मेरा डेटा किसी ने वेरीफाई करने के लिए एक्सेस करना है, तो वो जैसे क्लिक करेगा, चले मेरे पास तो नहीं है, वो बाकी एक दो लोगों के पास जाके चेक करेगा, और 51% से अगर उसको कंफर्मेशन आ जाती है कि जी ये डेटा ठीक है, तो दैट मींस के दैट इज एक्सेप्टेबल। अच्छा, इससे पहले भी एक चेक लगता है, जब डेटा ऐड हो रहा होता है तो 51% लोग बताते हैं क्या ये डेटा ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल तो नहीं है, एडिड तो नहीं है। तो ये पूरी वो जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो हम बात करते हैं ना, जो हमें तो यही बताया जाता है, ओ जी ये एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है, हमें तो ये यूज करना है। नहीं, आप अपना पूरा ब्लॉकचेन बना सकते हैं। दैट इज जस्ट नेटवर्क ऑफ नोड्स, मल्टीपल नोड्स। अगर आप प्राइवेट नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उसके ऊपर बना सकते हैं। अभी हम आगे चल के जब फाइनेंस पे बात करेंगे तो आपको और ये चीज क्लियर होगी इंशाल्लाह। इसके अंदर एक चीज जो मैंने अभी 51% की बात की, तो आपको कंसेंसस रिक्वायर्ड होता है 51%। 51% राय अम्मा आप लोगों से लेते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, कि जी ये जो डेटा है ये वेरीफाइड है। 51% ने अगर कह दिया कि ये डेटा वेरीफाइड है, तो दैट मींस वो ऐड हो सकता है। अगर 51% ने उसको डिनाई कर दिया तो वो डिनाई हो जाएगा। तो आपको कंसेंसस एल्गोरिदम उसके अंदर भर रहे होते हैं। इस टाइम तकरीबन अभी यहां पे तो जो चल रहे हैं ना, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक की बातें हो रही हैं सिर्फ, लेकिन तकरीबन 18 से ऊपर प्रूफ जो आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, कंसेंसस एल्गोरिदम्स हैं, उन पे काम हो रहा है ऑलमोस्ट 18 के ऊपर। तो इसलिए अभी लोग उसको यानी आप उसको ऐसे कह लीजिए, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन में अभी तक एक इशू है, वो है स्केलेबिलिटी का, कि जब कोई डेटा देखें, एक लंबा प्रोसेस है ना। इसीलिए जब मुझे कोई आके ये बात करता है ना बिटकॉइन और ये तमाम चीजें, तो मैं उन्हें कहता हूं कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी 2009 की टेक्नोलॉजी मैं आजकल यूज करूं, तो भाई मैं तो नहीं ऐसा कर रहा, क्योंकि वो तब के लिए बनी थी, वो अब के लिए नहीं बनी थी। और ब्लॉकचेन पे तो जाहिर है एक चीज चढ़ गई है, तो वो तो अब सारी जिंदगी के लिए वहां पे है, वो चीज खत्म तो नहीं हो सकती। तो इसलिए कंसेंसस एल्गोरिदम्स पे बहुत काम हो रहा है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो इसलिए आप लोग आगे से आगे की तरफ देखेंगे कि जैसे अब आपने सपोज करें, आपने अपने बॉसेस को या अपनी कंपनी को जो अगर आप ओन करते हैं, उसको आपने ब्लॉकचेन पे लेके जाना है एज ए फाइनेंशियल पर्सन। आप चाहते हैं आपका जो पूरे का पूरा फाइनेंस का जो इकोसिस्टम है ना, उसको हम शिफ्ट कर दें फिनटेक विद ब्लॉकचेन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा प्रोटोकॉल मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत तेजी से होनी होती हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पूरी चीज का। ब्लॉकचेन की फंक्शनैलिटी क्या है जी? देखें, ब्लॉकचेन की जो फंक्शनैलिटी है वो है यानी जो एक नॉर्मल फाइल होती है ना, उसकी एक फंक्शनैलिटी होती है कि दैट इज बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इसको हम करंट फंक्शनैलिटी कहते हैं। अब हमने ब्लॉकचेन में क्या किया, हमने इंटेंशनली जो आखिरी दो चीजें हैं ना, उनको हमने हटा दिया। आप अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते, आप या क्रिएट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। इम्यूटेबल मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो इम्यूटेबल के लिए ये चीज जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा आके अपडेट उसको कर देगा या उसको डिलीट कर देगा, फिर तो वही बात आ गई कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन की जो खसूसियत है, आप उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। कोई भी इंसान, यानी अगर आप इसको एचआर में भी डिप्लॉय करें, भी हम फाइनेंस की बातें करते हैं, लेकिन एचआर को भी अगर आप डिप्लॉय करें, तो अगर किसी बंदे का जिसे कह लें ना प्रमोशन होना है, और वो ऑटोमेशन पे लगा हुआ है कि जी इसकी ये परफॉर्मेंस रहेगी और ये अटेंडेंस रहेगी, तो इसको अगले साल बोनस भी मिल जाएगा और अगले साल इसकी प्रमोशन भी हो जाएगी। अब ये ऑटोमेशन पे लगा हुआ है, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी एक आम आदमी के सामने जाके तो वो उनको कहे कि जी ये जो है ना मुझे यानी किसी की वो क्या कहते हैं उसको हमारी जुबान में
किसी की तारीफें करके, और वो तो इस तरीके से बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि उसको श्योरिटी होगी कि मैं मेरिट पे ही ऊपर जाऊंगा, और वो जो सिफारिशपना और वो तमाम चीजें होती है वो भी खत्म हो सकती हैं इससे बड़ी आसानी से। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा हमेशा कि ये अपडेट और डिलीट को इसमें से खत्म करने का ये फायदा है। इसको हम ट्रस्टलेस नेटवर्क भी कहते हैं। यानी कई दफा ज़हन में आता है, अच्छा जी ये इतना अच्छा काम करता है, दिस विल बी अ मोस्ट ट्रस्टेड नेटवर्क। व्हाई ट्रस्टलेस? तो हम इसको ट्रस्टलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको किसी और बंदे पे, थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं। अब इस पूरी चीज का क्या मतलब है? देखें, अभी तक इसका नाम ट्रस्टलेस नेटवर्क जा रहा है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी है, आगे चलते चलते हो सकता है चीजें और इवॉल्व होनी शुरू हो जाए। तो वट अब क्या होगा, हो सकता है आगे चल के इसका नाम MTN रख दें लोग, मोस्ट ट्रस्टेड नेटवर्क, कोई पता नहीं है। क्योंकि जब से मैंने चीजें पढ़नी शुरू की है ना पिछले 4 साल से, 2018 से जब मैं ब्लॉकचेन में जब से इस फील्ड में आया हूं, तब से मैंने ये बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई देखी हैं। तो अभी आगे भी आप अंदाजा कीजिए बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आज आपने सोच लिया कि नहीं जी चीजें चेंज हो जाती हैं कि नहीं जी ये तो स्टिक रूल बन गया। तो ऐसा स्टिक रूल कोई नहीं है, आगे चल के तमाम बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आप इसको हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा प्रोग्राम जो इस पूरे जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है और पूरी चीज को ऑटोमेट कर देता है। थोड़ी देर पहले मैंने बात की HR सिस्टम की, बोनस, वो सब कुछ ऑटोमेट हो रहा होगा। आखिर में चल के हम सेल्स एंड परचेज की बात करते हैं कि फिनटेक के लोग कैसे इसमें काम करेंगे। पहले हम जरा थोड़ी सी ये बेसिक्स कवर करना जरूरी थी। जब हम यूज केसेस पे पहुंचेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यानी आप लोगों को ये समझ आएगी कि किस तरीके से ये तमाम चीजें आगे की तरफ जो है ना और बेहतर होती हैं। यानी आप इसको किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन क्या है? देखिए, आपको ना इसकी 4 टाइप्स मिलेंगी हमेशा। अच्छा, 4 टाइप से क्या मुराद है? जो पहले लफ्ज लिखा हुआ नजर आएगा वो होगा पब्लिक या प्राइवेट। इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं होगा शुरू में, उस 4 टाइप्स के शुरू में। इसका मतलब है इस डेटा के ऊपर राइटेबल जो है अथॉरिटी कौन है। सेकंड वर्ड उन चारों में होगा ओपन या क्लोज्ड। अब ओपन या क्लोज के अंदर मतलब यह है कि हु इज द रीडिंग अथॉरिटी। तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो पब्लिक ओपन, पब्लिक क्लोज, प्राइवेट ओपन, प्राइवेट क्लोज, ये 4 इसकी टाइप्स बनती हैं। जिसको अगर हम डिवाइड करें तो बहुत सारे आपके जो सेक्टर्स है ना वो इन चारों इस मैट्रिक्स के अंदर वो यानी इस टेबल के अंदर लाए करते हैं। वोटिंग सिस्टम, क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल करेंसीज अगर आप कहें, CBDCs, वो कैसे, वीडियो गेम्स, प्राइवेट क्लोज ऐसा होता है जिसके अंदर वो जो फॉर योर आइज ओनली वाली समटाइम्स ईमेल आती है ना जिसमें बहुत से लिखा होता है इसको पढ़ के डिलीट कर देना। वो हम जैसे लोग होते हैं शरारती जो है ना रिकॉर्ड में रख लेते हैं, कल को काम आ जाएगी ठीक है ना। तो हाँ, वोटिंग अगर आप लोग मुझे चैट पे बता सकें, वोटिंग अभी यहाँ पे तो पब्लिक क्लोज में लिखा हुआ है, तो मुझे काइंडली ये बताइए कि ये इसके अलावा और किसके अंदर जा सकता है। पब्लिक क्लोज इज फाइन, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो एक से ज्यादा में जा रहे होंगे। तो हमने अभी तक थोड़ी सी जो डिस्कशन किया, आपके ज़हन में क्या था? चैट में लिख के बताइएगा, वॉइस पे वो नहीं, चैट पे लिख के, और किसके अंदर ये आ सकता है कि कोई ऐसी चीज है आपके ख्याल में, ऐसा क्या हो सकता है? एनी आइडिया? बता सकते हैं? चैट में लिख के। एनीबॉडी? नोबडी? सोचें यार, ये तो बड़ा यानी हमने जितनी बात कर ली है इसके बाद तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने अहमद साहब। नहीं नहीं, इससे पता लगेगा ना जाग कौन कौन रहा है। ठीक है, चले, गुड। जी प्लीज आप लिख के मुझे बता सकते हैं कि ये पब्लिक क्लोज में तो आएगा।
लेकिन इन चारों डब्बों में से और किस डब्बे में वोटिंग सिस्टम आता है? वोटिंग सिस्टम किस और बॉक्स के अंदर आएगा? लाइक वो किस टाइप के अंदर लाए करेगा? क्वेश्चन ये है एक्चुअली। लाइक पब्लिक क्लोज्ड है, देन पब्लिक ओपन है, प्राइवेट क्लोज्ड है, प्राइवेट ओपन है, किसके अंदर आएगा? एक और में भी वो आएगा, किसके अंदर आएगा? पब्लिक ओपन। पब्लिक ओपन नहीं, पब्लिक ओपन में नहीं आएगा सर। बाकी दो ही ऑप्शन रह गए। ये आएगा प्राइवेट ओपन में। देखें, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाते हैं कि कैसे जो प्राइवेट ओपन होता है ना, वो किस तरीके से काम करेगा। यानी जो आपका इलेक्शन कमीशन है, पार्टिसिपेंट्स चंद है, इलेक्शन कमीशन ने ऐड करने हैं पार्टिसिपेंट, तो वो प्राइवेट एक एंटिटी है, उसने और उनको देखना उन पार्टिसिपेंट्स को सबने है, पूरी पब्लिक ने देखना। तो रीडेबल सब है, राइटिंग अथॉरिटी चंद लोगों के पास है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के चंद लोगों के पास, तो वो आएगा प्राइवेट ओपन में। पब्लिक क्लोज में क्यों आएगा? क्योंकि अब देख सब रहे हैं, यानी वोट सब कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट इलेक्शन कमीशन देख पा रहा है सिर्फ, तो इसलिए ये दो के अंदर हाइब्रिड में आ जाता है। इसी तरह और भी आप इसको डिसीजन मैट्रिक्स को जब आप यूज कर रहे हो तो आपको और भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि ये कैसे होता है। बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन जी, पब्लिकली वेरीफाइबल, ट्रांसपेरेंट होता है, सिक्योर बहुत ज्यादा है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी। आप चीजों की क्वालिटी बहुत बेहतर कर सकते हैं इससे, और फिर लो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होता है। जब थर्ड पार्टी बीच में से हट गई तो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना किसी भी चीज की। यानी आप डिस्ट्रिक्ट किसी भी मेडिसिन में किसी जो आपका, जैसे अभी एक मिसाल लें अगर हम लोग छोटी सी, कि आप एचईसी के पास जाते हैं अपनी डिग्रियां वेरीफाई करवाने के लिए, तो वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। अब अगर डिग्री चार्ज कर, यानी उसको डेटा प्रोवाइड करना है किसी यूनिवर्सिटी ने जो उसकी मेंबर है, और वेरीफाई करना है डेटा लाइक वीजा वालों ने या किसी और ने, तो आप पैसे एज ए कंज्यूमर आप पैसे नहीं दे रहे, उसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है यूनिवर्सिटी ने, यानी आप किसी बहाने में दे रहे होंगे, दैट अनदर जोक, ठीक है। लेकिन आप जो है ना बेसिकली, यानी आपको डायरेक्ट कोई पैसे नहीं पे करने, वीजा वाले उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं डायरेक्ट, तो इस तरीके से मिडल मैन की कॉस्ट खत्म हो सकती है, और आप बीच में से किसी भी मेडिसिन या ये जो होते हैं सब्जियां वगैरह एग्रीकल्चर में से मिडल मैन को हटा दें, फिर देखें पैसे कितने कम हो जाते हैं आपके। तो ये उस तरीके से काम करेगा। फिर चीजों, अगर आपको डेटा पूरा मिल रहा है तो क्वालिटी खुद ब खुद एश्योर होनी शुरू हो जाएगी, लोग उस पर जो है ना बहुत कुछ करना शुरू कर देंगे। जब आपको पता होगा आपको पैसे तब मिलने हैं जब चीजें वेरीफाई होंगी। ये हम आखिरी एग्जांपल में बात करते हैं कि कैसे, तो वह इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्वालिटी कैसे श्योर होती है। ये पूरा एक लाइफ साइकिल है ब्लॉकचेन का। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि दो लोग हैं, उन्होंने आपस में जो है ना किसी चीज का ओनरशिप चेंज करनी है। ए के पास कुछ गोल्ड है, बी के पास कुछ व्हीट है। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आप उस जगह पे आ जाना, मैं वहां पे आ जाऊंगा। ये आपके साथ कई दफा हुआ होगा, ठीक है, कि जी आपने कोई बात करनी है तो वो एक थर्ड जगह रखी जाती है जहां पे दोनों लोग इकट्ठे होते हैं, फिर गवाह बनाए जाते हैं, तो वो आपस में पासवर्ड शेयरिंग। अगर सपोज करें दूसरा बंदा नहीं आया, उसको वो पासवर्ड नहीं पता, दैट मीन्स नल एंड वाइड हो गया आपका जो है पूरे का पूरा सिलसिला। अब क्या है, अब उन्होंने, ठीक है, वो जगह पे पहुंचे, उन्होंने अनाउंस किया, ए ने अनाउंस किया मेरा गोल्ड, बी ने अनाउंस किया मेरा वीट, आज से ए का है, उसे अनाउंस। अब वो जो लोग हैं जो सामने सपोज करें उस मोहल्ले में या गांव में या सिटी में 100 लोग रहते हैं, उन 100 लोगों ने वहां पे जो है, दो लोग तो कर रहे हैं, बाकी 98 लोग, 98 लोगों ने सुना ए कह रहा है मेरा गोल्ड, बी कह रहा है मेरा वीट, तो हमने जो है ओनरशिप चेंज करनी है जी, मेरा वो वाला जो वहां पे गोल्ड पड़ा हुआ है इतना मन, या जो इतने मन वहां पे वीट पड़ी हुई है वो आज से, क्योंकि वो उठा के तो नहीं लेके आ रहे ना इतना ज्यादा जो चीज पड़ी हुई। अब तो वो फौरन उसको वेरीफाई करेंगे, वो उसके 51%, अगर 51% कहता है हाँ जी ये ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो वो ओनरशिप चेंज हो गई। अब वो एक ब्लॉक का पार्ट बनी, आपके ब्रेन में लेजर का पार्ट बनी और ब्लॉकचेन का पार्ट बन गई। अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। एक और चीज याद रखिएगा
ब्लॉकचेन के अंदर हर रिकॉर्ड को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। हाँ ठीक है, फाइनेंस में हम लोग फाइनेंस की बात करने लगे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं इस टाइम, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग जो ट्रांजैक्शन होती है वो ठीक है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन टेक्निकली वो कोई भी जिसे कहें ना रिकॉर्ड, दैट इज वन ट्रांजैक्शन, ये याद रखिएगा हमेशा। अब आते हैं फाइनेंस के, यहां तक एक्चुअली ब्लॉकचेन का बेसिक्स था कि आपको जब अब अगली चीजें हम कुछ डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको बेसिक्स पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो नहीं पता होंगे ना तो आप आगे नहीं चल सकते। फिनटेक क्या है? आप में से बहुत सारे लोग, हम सब यूज करते हैं फिनटेक, यानी आज की कोई चीज नहीं है। हम तब से फिनटेक या डिजिटल वॉलेट यूज कर रहे हैं जब से मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस आई हैं। ये जो आपके इजी पैसा, यूबीएल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जैज कैश, जब से ये वाली तमाम एप्लीकेशंस आई हैं हम तब से डिजिटल वॉलेट्स एक्चुअली यूज कर रहे हैं। उनमें कुछ फंक्शनैलिटीज नहीं है या वो ब्लॉकचेन पे नहीं है, दैट्स अनदर स्टोरी, बट वी आर पार्ट ऑफ दैट फिनटेक इकोसिस्टम। तो फिनटेक का वर्ड कहां से निकला है? अगर हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड पे जाएं तो बेसिकली टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल सेक्टर, यानी टेक्नोलॉजी टेक, और फिन उठाया फाइनेंस से। तो फाइनेंस इन द टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस इज बेसिकली आपका फिनटेक है पूरे का पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे नीचे कुछ मिसालें दी गई हैं कि एप्पल पे, गूगल वॉलेट, क्यूआर कोड फॉर पेमेंट्स, हम ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं। यानी कि आप में से आई होप आप में से जो लोग बैंक्स में जॉब करते हैं वो तो डेली जाते होंगे, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो क्लाइंट है, लाइक मेरे जैसा बंदा ब्लॉक अरसा दराज ही हो गया जी कि बैंक गया हूं मैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। और पेंडेमिक के दिनों में तो वैसे ही हम लोग जो है यानी वो करते थे। तो अब आप यानी फिनटेक को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? अभी तो देखें, मैं वही बात कर रहा हूं, दोबारा से समझिएगा, हम ऑलरेडी फिनटेक स्पेस में हैं, लेकिन उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अभी भी, बिकॉज सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन अगर उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, सपोज कर लेते हैं, एक बैंक की मिसाल लेते हैं, यानी अच्छा एक और इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट सुनने को मिलता है, उनको कहते हैं माइनर्स। आप लोगों ने अगर जो क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, या उन्होंने हमेशा सुना होगा माइनर री माइनिंग मशीन लग रही है, माइनिंग मशीन ब्ला ब्ला ब्ला। माइनिंग मशीन कुछ नहीं होती, इसको थोड़ी देर के लिए चेंज कर दें इस माइनिंग मशीन को वेरीफायर मशीन से, तो वो जो 98 लोग थे ना, बेसिकली वो माइनर्स थे। तो वो वेरीफायर से जो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर रहे हैं, आप अब उनको नोड्स में चेंज कर दें, वो कंप्यूटर लगे हुए हैं, उनके पास एक डेटा जाता है जिसको वो वेरीफाई करते हैं कि ये डेटा जो है इस पे ये वाली स्टैंप है या नहीं है, और वो उसको इस अपने ब्लॉकचेन में फेंक देते हैं कि ठीक है जी, या उसको रिजेक्ट कर देते हैं या उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज, उस रिकॉर्ड को। सो दैट इज इट। तो फिनटेक के अंदर भी यानी आपकी तमाम जो ट्रांजेक्शन हैं उनको आप ब्लॉकचेन पे रखना शुरू कर दें, सो दैट इज इट। कि जी जब आपने उनको ब्लॉकचेन पे रखना शुरू कर दिया तो अब चीज जिंदगी तो आसान हो गई। अब कोई जरूरत नहीं है वो करने की। अब सपोज करें एक बंदे की 1.5 लाख रुपया सैलरी है, तो उसके पास 1.5 लाख ही है, उसको कंपनी ने दिया, अब वो उसके उससे चीजें परचेज कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। अभी भी हम रिकॉर्ड अगर कहें तो रिकॉर्ड क्या बनता है? रिकॉर्ड बनता है जी आपका जो आप जो स्लिप निकालते हैं इसके अंदर, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालते हैं, तो उसमें यही नजर आ रहा होता ना आपको जी, इतने पैसे आए, इतने पैसे गए। लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि वो मैनिपुलेशन उसमें हो सकती है, लेकिन आप उस पूरी चीज को ब्लॉकचेन पे लें तो मैनिपुलेशन क्या, कुछ सोच भी नहीं सकते आप मैनिपुलेशन का। तो ये जो एक मिथ है ना बहुत बड़ा, कि जी बैंकिंग सेक्टर को ब्लॉकचेन से बड़ा खतरा, कोई खतरा नहीं। अगर आप इसको इंटेलिजेंटली बेहतर बनाने लगे ना, इंटेलिजेंटली, तो बहुत जबरदस्त काम हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी क्या बला है? यानी कि हर बंदा जो है बात करता है जी क्रिप्टो करेंसी, ओ जी क्रिप्टो करेंसी, कुछ नहीं। सिंपल डिजिटल करेंसी है जो कि आपके इस डिजिटल वॉलेट में पड़ी होती है। वॉलेट अभी आप यूज कर लें कि यूबीएल का जो वॉलेट है, आपने कई लोगों को, कई इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि जी ये तो जो है ना वर्चुअल है। तो अभी यानी जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, वो उनका कुछ बैक नहीं है।
इसलिए लोग उनमें फ्रॉड भी होता है, उनमें बहुत कुछ होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि एक सीबीडीसी बन जाए और वो सीबीडीसी जो है सारे का सारा कुछ कर रहा हो, तो देयर इज नो इशू। वहीं से पैसे आ रहे हैं, वहीं से यानी आप इसकी देखें, आप सब जो फाइनेंस के माशाल्लाह लोग हैं, आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता होगा इस चीज का कि जो 100 रुपया मेरी जेब में पड़ा था, ये असल में 100 रुपया नहीं होता। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, इसकी अपने पेपर की कॉस्ट होती है और बेताशा कॉस्ट है इसकी। तो ये कहीं मिल मिला के कोई 94 रुपीज बनते हैं, या जो बाद में 6 रुपए जो हमसे वो टैक्स की मद में लिए जा रहे होते हैं, या और बहुत सारी। लेकिन अगर आप उसको शिफ्ट कर दें डिजिटल मनी में, तो आपके पास पूरा 100 रुपया होगा। तो आपको दूसरी तरफ से बचत होनी शुरू हो गई, आपने एक बहुत बड़ी कॉस्ट बचा ली ऑटोमेशन से। अच्छा, अब ऑटोमेशन पे अगर हम आते हैं, अभी देखें किसी का भी दिल करता है जितने मर्जी पैसे छाप लिए और वो ब्लैक मनी को जो है उन्होंने वाइट मनी में बाहर ले गए, वहां पर को डॉलर में कन्वर्ट किया, एंड दैट इज इट, खत्म स्टोरी। वो जो आपका जो वो जो पैसे थे जिसके बैक पे कुछ भी नहीं था, वो जी अब मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। इसी तरह एक प्रॉब्लम होती। अब मैं इसके अंदर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वापस जाते हैं, ऑटोमेशन वाले में। मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या करता हूं, मैं उसके अंदर एक शेक लगाता हूं एवरी ईयर। ये जो है ना, ये वाला सिस्टम सपोज करें 50,000 रुपए जनरेट करेगा जो कि मार्केट के अंदर आ जाएंगे। बस मिसाल दे रहा हूँ, जाहिर है ये आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है कि कितने होते होंगे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं, लेकिन फिलहाल हम 50,000 की बात करते हैं कि ये 50,000 रुपए नए जनरेट करेगा जो कि मार्केट में जिस सर्कुलेशन में आ जाएंगे। तो आपकी वो वाली जो प्रॉब्लम है मनी लॉन्ड्रिंग और ये तमाम चीजें रुकनी शुरू हो जाएंगी बहुत हद तक, बहुत ज्यादा। यानी अगर आप इसको और स्मार्टली डिजाइन करें तो शायद आप 100% भी रोक लें ये चीज। डिजिटल करेंसी देखें, क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली डिजिटल करेंसी। यानी हमने क्या किया, हमने जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन शिटकॉइन ये वो हमने उनको क्रिप्टो करेंसी कह दिया, और जो आपका सेंट्रल बैंक बना रहा है उसको डिजिटल करेंसी कह दिया थोड़ी देर के लिए इसको। दैट इज क्रिप्टोग्राफिकल करेंसी। आप क्रिप्टोग्राफी को चेंज कर दें डिजिटल से, सो दैट इज ऑटोमेटेड करेंसी बेसिकली, जो डिजिटलाइज है पूरी की पूरी। तो आप जब भी फायदे इसके सोचेंगे ना, देखें मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है खुदा ना ख्वास्ता, उसमें वॉलेट था मेरा, लेकिन वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें मैंने 3 4 5 पासवर्ड लगाए हैं। तो जैसे आप में से कुछ लोगों को पता होगा, अगर आपके पास आईफोन है और उसके अंदर एक खास आपने प्रोग्राम ऑन किया हुआ है, तो आप अगर कॉल करें ना सैन होजे एप्पल की सपोर्ट टीम को, तो वो आपको आपका फोन ढूंढ देते हैं कि आपका फोन किस जगह पे। और फिर अगर आप उनको कहें, या अगर आपका पीसी कनेक्टेड है आपके फोन के साथ, तो आप अपने पीसी के अंदर बैठ के तो अपने फोन को वाइप आउट कर सकते हैं कि कोई इसको यूज ही ना कर पाए कभी, आपका डेटा जाहिर पड़ा होता है उसके अंदर। तो ये तमाम चीजें बड़ी आसानी से पॉसिबल हैं, बस आपको थोड़ा सा स्मार्टली डिजाइन करना है इन चीजों को। ट्रांजैक्शन का लाइफ साइकिल हमने जो पूछा, तो वो ब्लॉकचेन का लाइफ साइकिल ही है, दैट इज नॉट, उसमें कोई ऐसी खास चीज चेंज नहीं है, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपका देखें जो चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की हैं, एक ब्लॉक के अंदर यही तमाम चीजें होती हैं जो अब आपको नजर आ रही हैं। टाइम स्टैम्प होता है, हैश पॉइंटर होता है, ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का, डिसेंट्रलाइज लेजर का एड्रेस होता है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, और उसकी जो इम्यूटेबल उसका रिकॉर्ड होता है, नथिंग एल्स। फीचर्स जो हमें फिनटेक में मिलते हैं वो आपकी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेबल होती हैं और क्रिप्टोग्राफिकल हैश से प्रोटेक्टेड होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें इंक्रिप्शन नहीं डालेंगे तो कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। और यूनी वो आप देखें, आपने आप जब किसी को एड्रेस भी इवन अपना भेजेंगे ना, अभी तो ये है कि आपने यूबीएल सपोज कर लेते हैं या एचबीएल, शायद क्यूआर कोड की ऑप्शन देता है। तो अगर वो क्यूआर कोड किसी का है ना, आपका वही हर जगह पे चल रहा है कि अब वो आपका स्कैन कर ले और पैसे आपको आ जाए और समथिंग। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप हर बंदे को एक यूनिक कोड बना के दे रहे हैं, दैट इज पॉसिबल। लेकिन अब इसमें फायदा क्या होगा कि वो उससे आपका बैकएंड तक नहीं पहुंच सकता। ये डिफरेंट साइंस है, हम इस पर फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, क्योंकि इसके ऊपर ना हमने एक पूरा लेक्चर रखा होता है,
तो इसे मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज एक तो उतना टाइम नहीं है। जो फिनटेक इकोसिस्टम है पूरे का पूरा, देखें एक चीज याद रखिएगा, इकोसिस्टम का आपको अंदाजा होगा कि जो एक पूरा लाइफ साइकिल होता है ना किसी भी चीज का, जैसे हम इस टाइम फाइनेंस के लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ब्लॉकचेन, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को लेके आना, उस पूरे इकोसिस्टम को चेंज करना है। कितने लोग इस टाइम काम कर रहे हैं, ये वो तमाम वो कंपनीज हैं जो, या बैंक्स हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग इनको जरूर स्टडी कीजिएगा, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो आप लोग जाके ना एक एक को जरूर यूज चेक कीजिएगा कि इसमें क्या चल रहा है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं जो काम कर रहे हैं। एक इधर HSBC होता था जो टेक्नोलॉजी में सबसे हाईफाई बैंक है, फिर सिटी बैंक बहुत ज्यादा काम करता है टेक्नोलॉजी को अपनाने में, वो सबसे पहले पहुंचा होता है कोई भी नया आइडिया हो तो ये कुछ है बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो। देन अदरवाइज जो एजुकेशनल लोग हैं कि जी वो किस तरीके से फीसिस ले रहे हैं फिनटेक के थ्रू, सो दैट्स अनदर थिंग। अभी हम टोकन इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपको और समझ आएगी कि फीसी से क्या मुराद है। एक और टर्मिनोलॉजी आगे चल के आने वाली है, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो इकोनॉमिक्स। आप में से जो लोग इकोनॉमी को जानते हैं, इकोनॉमिक्स को जानते हैं, उनको अंदाजा होगा कि कितनी क्रूशियल चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक आम कंट्री के लिए। हम यही रो रहे होते हैं ना नॉर्मली पाकिस्तान में या हर जगह पे, क्रिप्टो जो सारी हमारी जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है वो ऐसे डाउन हो गई, इकोनॉमी ऊपर चली गई, ये हो गया। तो क्रिप्टो इकोनॉमिक्स में जाने का आपको फायदा यह है कि अगर आपकी तमाम की तमाम टेंडरिंग या तमाम की तमाम जो ट्रेडिंग या तमाम की तमाम जो वो जो ई रुपी वाली मैंने बात की कि डिजिटल करेंसी आ जाए और उसके ऊपर होना शुरू हो जाए। क्यों चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करके अपनी डिजिटल युआन वो कर दिया। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जो है ना हम सीबीडीसी के ऊपर भी, मैं काशिफ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कभी हम सीबीडीसी के ऊपर भी एक डिटेल सेशन रखेंगे ताकि हम सीबीडीसी को डिस्कस करें कि व्हाट आर द सीबीडीसी। तो इन चीजों को हमेशा याद रखिएगा कि ये क्रिप्टो इकोनॉमिक्स आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, एक टोकन इकोनॉमी और एक क्रिप्टो इकोनॉमिक्स। यानी आप इन दोनों के बगैर आगे आपकी लाइफ नहीं होगी। सेम चीज है उसी तरह कंसेंसस, यानी इकोनॉमिक्स में भी आपने ज़ाहिर डेटा ऐड होना है, कोई ट्रांजैक्शन होनी है, जो रिकॉर्ड ऐड होना है वो रिकॉर्ड किस तरीके से ऐड हो रहा होगा, कंसेंसस कैसे आ रहा होगा, तो सेम चीज है। यानी बेस सेम है, ऊपर टर्मिनोलॉजी चेंज होती जा रही है। सो दैट इज बेसिकली क्रिप्टो इकोनॉमिक्स एंड ब्लॉकचेन। अब अगर हम बात करें ब्लॉकचेन इन फाइनेंस की, अभी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज में ये तमाम इश्यूज हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। हमने भी थोड़ी देर पहले बेनिफिट्स की बात की ब्लॉकचेन पे, हमने बार बार ट्रांसपेरेंसी का वर्ड बोला, ये बोला कि लोगों के पास डेटा किस तरीके से लोग वेरीफाई करेंगे उसको। तो अभी यानी अभी मेरे जैसा बंदा अगर फाइनेंस, क्योंकि मुझे आज तक डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आता, मजे की बात ये, यानी मैं सोचता ही रहता हूँ डेबिट डेबिट क्रेडिट क्या बला है। तो आपकी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, देन आप ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, डिलेज आते हैं चीजों में, वो तमाम चीजें ब्लॉकचेन से आप खत्म कर सकते हैं। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज कॉल्ड डीफाई, द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। दोबारा जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हमने डिसेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड की बात की। तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मींस दैट इज बहुत सारे लोग जो है वेरीफायर्स हैं और वो फाइनेंस। अच्छा यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है, तो इस तरह तो सबोटाज हो जाएगा जी अगर तो हम डेटा सबके पास रखेंगे। नहीं, दोबारा से वापस जाएं, सबोटाज कुछ नहीं होगा। क्या होगा, डेटा आपका की के बगैर नहीं ओपन होगा। वो की कौन जनरेट कर रहा हो, कोई बैंक जनरेट कर रहा होगा। वो जो की है वो आपके लिए यूनिक है, वो बेस्ड ऑन आपके अकाउंट के है, अकाउंट में जो डेटा दिया गया उसकी बेस पे की बनी है, वो की इरिवर्सेबल है। यानी आपका डेटा किसी के पास आ भी जाए सारे का सारा तो वो उस की तक नहीं पहुंच सकता, या किसी के पास की आ जाए तो वो उस डेटे तक नहीं पहुंच सकता। तो हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा बना सकते हैं इसके अंदर। तो जितनी भी अभी देखें, अभी आपकी जो ऐप है किसी भी बैंक की, वो सेंट्रलाइज्ड ऐप है। तो अगर आप उसको डिसेंट्रलाइज करो दैट इज कॉल्ड डी ऐप, डैप कहते हैं हम उसको ब्लॉकचेन की जुबान में। तो जब हम ब्लॉकचेन को डिप्लॉय करते हैं डीफाई के अंदर, तो आप में ऑटोमेशन आ गई। अभी अगली मिसाल अगली स्लाइड पे है कि किस तरीके से ऑटोमेशन आती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ गई, थर्ड पार्टी बीच में से निकल गया। रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई, आपने किसी को पैसे भेजने फौरन पहुंच गए। जैसे सपोज कर लेते हैं एक बंदा यानी अभी हम अगर शॉपिंग करने जाएं किसी जगह,
वहां पे क्या होता है जी, वहां पे लोग जो है ना यानी चले मैं अपनी मिसाल देता हूँ, कभी जाएं या चलें किसी के सबके साथ होता होगा ये कि जी आप चीजें कम लेके आए हैं, या अगर शादीशुदा है तो बीवी से डांट पड़ती है, अगर शादीशुदा नहीं है तो घर वालों से डांट पड़ रही होती है, पेरेंट्स है कि यार तुम चीजें भूल जाते हो, चीजें नहीं, वो बंदे को होता है यार मैं पैसे नहीं थे क्या करता। तो अब चक्कर ये है कि जब आप पैसों की उस सर्कुलेशन में आएंगे ना, तो अब आप सोचिए कि वहां पे आप खड़े हुए हैं किसी जगह पे, अभी मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूं, आप किसी जगह पे खड़े हैं, ई रुपी का दौर है, डिजिटल वॉलेट, आप गए, आपने सिर्फ एक बंदे को मैसेज किया, वो बंदा मैसेज करके वो बंदा मैसेज करके कहता है जी कि ये जो है ना मुझे इतने पैसे चाहिए, उसने अपना क्यूआर कोड भेजा अपने वॉलेट का। अभी क्या है, मुझे इजी पैसा का अकाउंट चाहिए टू यूज इजी पैसा, मुझे यूबीएल का अकाउंट चाहिए टू गेट यूबीएल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो वो चीज नहीं है, एक डिजिटल वॉलेट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे बना दिया, वह खत्म हो गई बात। मैं उस डिजिटल वॉलेट में जाता हूँ, वो क्यूआर कोड अब मुझे रेडी टू स्पेंड मनी मिल चुका हुआ है, मैंने सिर्फ उसको करना, यानी किसी से भी अभी क्या, या तो मैं आधी चीजें वहां पे छोड़ के आऊंगा या मैं घर से पैसे लेके जाऊंगा, तो ये सारी चीज। अब इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे लेना है, एक बंदा दुबई में बैठा हुआ है, उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, अब क्या होगा, अभी भी आएंगे नहीं, वेस्टर्न यूनियन कर दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन उसके लिए हैसल बहुत है। उस हैसल की बजाय क्यूआर कोड आया, उस क्यूआर कोड को आपने स्कैन किया, उस बंदे को पैसे उस टाइम मिले, तो कितनी फास्ट और ट्रांसपेरेंट और तमाम चीजें उसके अंदर कितनी आसानी से आ गई। अच्छा एग्जाम्पल ये है जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन वाली, अगर सपोज करें एक सेलर है और एक बायर, सेलर बायर, सेलर के लिए इंपॉर्टेंट है कि बायर के पास इतने पैसे हों कि जी जब मैं चीज भेजूं तो वो कैश ऑन डिलीवरी या वट एवर जो भी है वो करे। बायर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो चीज मुझे मिल रही है वो जेन्युइन है कि नहीं, सिंपल है ना, आपके साथ बहुत दो नंबरियां होती हैं, हर बंदे के साथ होती हैं। तो बायर ने अपने पैसे सपोज करें $100 चीज सेलर से लेनी है, उसने $100 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखवा दिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरे अकाउंट से कनेक्टेड है, उसमें मैंने लिख दिया कि जी यहां से इस अकाउंट में जब मैं वेरीफाई कर दूं चीज को तो आप अब चीज रिसीव होती है, इस सेलर को पता लग गया भाई मैं $100 की इसके अकाउंट, इसके पास $200 पड़े हैं, ट्रांजेक्शन शुरू हुई, चीज घर पहुंची, सपोज करें नाइकी की कोई चीज थी, घर पहुंची, आपने देखा उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था, आपने टैग को किया चीज ओरिजिनल है, आपने जैसे ही अपनी ऐप पे जाके वेरीफाई का बटन दबाया उनकी सपोज करें नाइकी की या जो भी सेलर की एप्लीकेशन है उस पर जाके आपने वेरीफाई का बटन दबाया, पैसे उसके अकाउंट में चले गए। सो दिस इज ऑटोमेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने फास्ट और ये वो रिलायबल और ट्रांस, मसला सॉल्व हो गया, कोई ऐसा इशू तो नहीं हुआ। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम है कि वो तमाम की तमाम चीज को ऑटोमेट कर देता है। अच्छा एक और चीज है जिसको हम टोकन इकोनॉमी कहते हैं, वैसे आजकल इसका नया नाम निकला टोकोनमी, टोकोनमी, ठीक है, यानी टोकन इकोनॉमी से उन्होंने टोकोनमी कर दिया इसको, तो मर्ज कर दिया दोनों चीजों को, टोकोनमी। तो अब मैंने वैसे भी कहा था इवॉल्व हो रहे हैं, तो नाम बहुत ज्यादा आते हैं और सारा कुछ होता है, तो वो इस तरह चीजें चलती हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि आप किसी को चैरिटी करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में ये सब चीजें होती हैं, तो आप किसी को $1000 देते हैं, वो $1000 वो जाके खाना नहीं खाता नशा करना शुरू कर देता है, ये चीजें होती है ना। तो उस पूरी चीज को आप सिक्योर कैसे कर सकते हैं, आप उसको टोकन्स दे देते हैं कि भाई ये तुम्हारे खाने के टोकन्स हैं, जाओ यहाँ पे तुम जा जाके इसको यूज कर सकते हो, तो वो वहां पे जाएगा और सिर्फ खाने के टोकन ही मिलेंगे। हाँ मैं यहाँ पे नॉर्मली कहता हूँ कि सबसे परेशान स्टूडेंट्स होंगे कि कि जी उन्होंने पैसे लिए थे बुक्स के लिए या फीस जमा कराने के लिए, उसमें से उन्होंने इतने खर्च कर दिए या उतने खर्च कर दिए, और जी वो जो है ना उनके लिए अब दोबारा से उनको पैसे चाहिए। तो लेकिन जब अब वाले सब पैसों की जगह टोकन भेज रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे फीस के टोकन हैं और ये इस यूनिवर्सिटी में ही जमा होने हैं, तो वो उन बेचारों के लिए प्रॉब्लम बन गई। तो टोकन इकोनॉमी में इस तरह से काम होगा कि आप चीजों को बहुत ज्यादा रेलेवेंट बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टोकन इकोनॉमी। तमाम चीजें वो जो अभी हमने बॉर्डर पे बात की, तो फाइनेंशियल यूज के साथ की ट्रांजैक्शन कितनी क्रॉस बॉर्डर पे, अगर हम बात करें क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स हैं,
वो कितनी आसान हो जाती हैं। आपने किसी को, वो दुबई वाला जो मैंने अभी बात की, तो क्रॉस बॉर्डर आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, देयर इज नो बडी इन बिटवीन। तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। अब सिर्फ उसको हमने जिसे कहते हैं ना रेवोल्यूशनाइज तरीके से सोचना है चीजों को, तो ऑटोमेटिकली चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। ब्लॉकचेन के और बहुत सारे यूज केसेस जहां जहां पे रिकॉर्ड आता है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, वहां पे आप इसको कर सकते हैं। और इनके साथ आप फाइनेंस को तो जोड़ ही सकते हैं आप, राइट। तो आपकी रियल स्टेट, उसके अंदर फाइनेंस हर चीज के अंदर आता है, ठीक है। कार रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट वो, ठीक है, मैनेज रिकॉर्ड्स, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, हर चीज आपकी जो है इसकी बेस पे होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, आजकल जो दुनिया को कहा जाता है दैट इज बेसिकली, जो दुबई में इंप्लीमेंटेशन हो रही है, तो दुनिया का पहला ब्लॉकचेन सिटी बनने जा रहा है। उनकी तमाम की तमाम जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहे हैं। आप लोग फाइनेंस के हैं माशाल्लाह, तो आप में से किसी को अंदाजा सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन में और फिनटेक इन ब्लॉकचेन में कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा काम कर रहा है, और कहाँ पे आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा, खैर पाकिस्तान में है क्योंकि अभी यहाँ पे तो काम शुरू नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो आप लोग रेगुलेटर्स और ये वो बनाएंगे नहीं, और कोई कोई और चीज अगर आप बता सकें। पोलैंड नहीं, अच्छा शायद आप लोग सुन के हैरान, सऊदी अरेबिया। आप क्या करें, गूगल पे जाएं, लिखिए सऊदी अरेबिया फिनटेक एवोल्यूशन, वो आपको बता देगा। उन्होंने 2030 का टाइम दिया हुआ है तमाम लोगों को, तमाम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, कि कम ऑन आर ब्लॉकचेन, जो उन्होंने फाइनेंस का पूरा ब्लॉकचेन खड़ा करने लगे हैं वो लोग। तो सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा काम कर रहा है जिसके अंदर। कैरियर क्या क्या है, यानी आप लोग कहां पे फिट होते हैं एज ए फाइनेंस गाइस। यानी क्या आपको प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत है? नहीं, आपको कोई प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है। दैट इज, जो लोग आपको ये कहते हैं वो फुलिश बातें करते हैं। मैं आपकी जिंदगी आसान करने लगा हूं। 3 तरह की जॉब्स निकलेंगी ब्लॉकचेन के अंदर: रेगुलेटर्स, आर्किटेक्ट्स, जो डिजाइन करते हैं, वट जो भी आप उनको कहें, वो तमाम लोग इसमें आएंगे फर्स्ट कैटेगरी में। काम बड़ा क्रूशल है, तो दीज आर द पीपल। देन है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, हेल्थ केयर के लोग, डॉक्टर्स, फाइनेंस के लोग, सीए, एसीसीए, ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम के तमाम लोग यहाँ पे फिट होते हैं। एजुकेशनिस्ट, और क्यों होते हैं बताता हूं अभी। देन आते हैं डेवलपर्स। ये दोनों कैटेगरीज मिलकर काम करेंगी बहुत ज्यादा। ये उसके बाद उनको बता दिया जाएगा भाई आपने ये डेवलप करना है, तो ये डेवलपर्स का काम है, तो डेवलपर्स को आप निकाल दें इस जगह थोड़ी देर के लिए। आप इधर फिट होते हैं क्योंकि आर्किटेक्ट जो है ना, या रेगुलेटर, उसके पास पूरा नॉलेज नहीं है किसी फाइनेंशियल सेक्टर का, पूरे फाइनेंस के इकोसिस्टम का उसके पास पूरा नहीं है। वो कौन बताएगा उसको कि ये प्रोसेस है, ये चीज ऐसे होती है, इस चीज को ऐसे कन्वर्ट करना है, इस पे व्हाइट पेपर में ये लिखोगे, ये चीज आएगी, ये प्रोसेस है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, अगर आप फाइनेंस की बात करें तो यू आर द पीपल जो ये काम कर रहे हो। आई होप अब आपको समझ आई होगी कि जी मैंने जो शुरू में बात की थी ना, मैं आप लोगों का विजन चेंज करने लगा हूं ब्लॉकचेन को और फाइनेंस को और क्रिप्टो करेंसीज को लेके। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि आप कहां पे फिट इन होते हैं। देयर इज नो नीड कि जी आप जो है आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, देयर इज नो नीड कि आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, देयर इज नो नीड कि आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए, ठीक है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, यू नीड, आपको उसके प्रोसेसेस बनाने हैं। देन अगर वो जो जो बैंक्स का लोग, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो डालते हैं ना बात के जी ब्लॉकचेन आ गया तो ये बैंकों को बड़ा खतरा है, वो जान के बैंकों को कहते हैं बैंकों को बड़ा खतरा है, कोई खतरा नहीं है। आई होप इन बातों से आपको अंदाजा हुआ होगा। बैंक्स बहुत एफिशिएंट होकर काम कर सकते हैं अगर प्रॉपरली डिजाइन करें इस पूरी चीज को। तो ये मेरी बुक है जी जो मैंने लिखी थी, फ्री अवेलेबल है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आपको मिल जाएगी। इसके अंदर रियल टाइम यूज केसेस, बेसिक्स और सिक्योरिटी मैकेनिज्म बहुत डिस्कशन की हुई है मैंने, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। एक और बुक पे मैं काम कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह जल्द लॉन्च करने का इरादा रखता हूँ। तो ये फ्री अवेलेबल है, लीन पब के ऊपर आप जाएं, जाके इसको डाउनलोड करें एंड एंजॉय योर बुक। कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट लेट मी नो। एंड ये अगर आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये कुछ क्यूआर कोड है, इनकी पिक्चर ले लीजिए। वैसे प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। काशिफ भाई को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर सब लोगों के आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जिसमें तमाम ये फाइनेंस सेक्टर और जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर हम लोग अच्छी अच्छी डिस्कशंस कर सकें।
जब हम कोई ट्रेनिंग लॉन्च करेंगे प्रॉपरली फिनटेक ऑन अ ब्लॉकचेन, जो कि ऑब्वियसली एक लंबी कोई 10 15 20 घंटे की ट्रेनिंग होगी, तो वो काशिफ भाई आपको इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी इन्फॉर्म कर देंगे। ये एक्चुअली पूरे का पूरा जो ब्लॉकचेन की आज हमने बात की है, बेसिक से लेकर तो यूज केसेस से लेकर तो आपके फाइनेंशियल सेक्टर में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपको सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है, उसके डिनायल में नहीं जाना, बिकॉज ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लोग जो अपना रहे हैं या जो अपना चुके हैं या जो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज से 5 साल बाद एक डिफरेंट एरा में खड़े होंगे। हम डिनायल करते रहे, हमारे वो इन्फ्लुएंसर्स या दोस्त या जो अहबाब हैं वो उसको क्रिप्टो करेंसी करते रहे और हम उसी के अंदर लगे रहे, हम उसका बड़ा जो 98% बाकी चीज है उसको ना देखें। तो मेरा ख्याल है, जैसे आप सप्लाई चेन की मैं बात करता हूं, तो सप्लाई चेन का फाइनेंस से डायरेक्ट रिलेशन है, एजुकेशन का फाइनेंस से डायरेक्ट रिलेशन है, हेल्थ केयर का, यानी फाइनेंस कहां पे फिट नहीं होता, सिर्फ आपने चीजों को जोड़ना शुरू कर देना। तो मेरा ख्याल है कि आपको, आई होप कि इस सेशन से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। तो ये वजह थी इसको उर्दू में करने की, ताकि ये क्वेश्चंस, ये जो चीजें हैं ना, आप लोगों के सामने मैं ज्यादा खोल के बयान कर सकूं, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी इतना मटेरियल है, उर्दू में लोग बात नहीं करते, मुझे नहीं पता क्या वजह, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि क्योंकि मेरा मकसद समझाना होता है रादर देन के लोगों को और कंफ्यूज कर दूं। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो प्लीज हम वो ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू अहमद साहब, अमेजिंग। आपने बल्कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें काफी कुछ कवर कर लिया है, काफी कुछ, क्योंकि काफी हमें क्वेश्चंस आए थे जब हमने एक गूगल वर्किंग हमने लॉन्च की थी, तो उस पर हमने पूछा था कि क्या क्या क्वेश्चन है, तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में वो काफी हद तक क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मैं आपकी स्क्रीन को एज ए स्क्रीन रहने देता हूं, ताकि अगर कोई इससे कनेक्ट होना चाहे तो कर ले। बाकी फिर अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, काफी पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके ज़हन में कुछ सवाल भी होंगे, कुछ सवाल हैं जो डेफिनेटली मैं भी चाहूंगा पूछना। तो मैं पहले पार्टिसिपेंट से चाहूंगा, आप ना हर पार्टिसिपेंट अपना ना हैंड रेज कर ले जो सवाल करना चाहते हैं, तो मैं एक एक करके सबको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, दे कैन अनम्यूट देयर माइक एंड दे कैन आस्क क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हैंड रेज एंड देन विल गो। सो एक हैंड रेज आ गया हुआ है असगर खान साहब का। सो असगर खान साहब, प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए और आप सवाल पूछ लीजिए। अच्छा, मेरा जो एक बड़ा ऐसी क्वेश्चन, मैं असल में बीच में मैंने ज्वाइन किया तो आई डिडंट हैव द कॉन्टेक्स्ट एट द इंट्रोडक्शन स्टेज, लेकिन द अदर डे आई वाज थिंकिंग अबाउट इट इन अ डिफरेंट वे। अभी तक हमारे पास जो डेटाबेस बनता है वो बहुत ही ज्यादा रैशनल डेटाबेस टाइप ऑफ डेटाबेस है, और गोइंग फॉरवर्ड विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वी वुड हैव एनक्रिप्टेड डाटा, ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स में होगा। तो अब उसके साथ जो जैसे कर रही है विद द पैसेज और ब्लॉकचेन जो है वो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत सारी चीजों में भी आने लग पड़ी है, अदर देन फाइनेंस, लाइक हेल्थ केयर में भी आने लग पड़ी है, और दूसरी एस्पेक्ट जो एरियाज हैं उसमें भी आने लग पड़ी है। तो हम इस डाटा को कैसे इसको फेच करेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि एज अ फाइनेंस, ठीक है, हम अंडरस्टैंड तो करते हैं कि हम लोग एज अ आर्किटेक्ट और एज अ रेगुलेटर और वट एवर द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे, लेकिन जो मैंने एक इवोल्यूशन देखी है इन यूएस और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें जो मैंने देखा है, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सीपीएज हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो अपने साथ टेक्निकल स्किल्स भी लेके साथ साथ चल रहे होते हैं, ताकि उनकी डिपेंडेंसी आईटी पे कम रहे, और वो जो उनको बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके साथ वो डाटा रेंगलिंग कर सकें, डाटा को अंडरस्टैंड कर सकें, उसको ट्रांसफॉर्म करके और फिर बिजनेस कंक्लूजन बना के उससे बात करें। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डेवलपर जो फुल स्टैक डेवलपर है उसकी मतलब वो चीज इतनी रेलेवेंसी नहीं है, और वो बात में से आपकी बात से सहमत भी हूँ इस बात पे। अब जो मेरा क्वेश्चन है, तो मतलब आप हाँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ असगर साहब, यानी कि आप सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि बाकियों को भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मैं क्वेश्चन मेरा इसमें ये है कि एज अ स्किल सेट व्हाट आर द एग्जैक्टली स्किल सेट दैट वी शुड कंप्लीट, ठीक है, उसके लिए हमें जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी उसको तो अंडरस्टैंड करना ही है, और इसके साथ
टेक्नोलॉजी वाइज हमें क्या चीज सीखना चाहिए? जिस तरह आजकल डाटा के लिए पावर बीआई, टैबल्यू और स्किल चलता है। ये मेरा क्वेश्चन। आप एक्चुअली Thank you, अगर Oscar, आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, तो आप जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करें बेसिकली, बिकॉज दैट इज बेसिक। देन सॉलिडिटी लैंग्वेज है जो कि ब्लॉकचेन के लिए यूज होती है, इथेरियम। तो पहले आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है। इफ यू हैव अ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड देन देयर इज नो इशू, बट इफ यू डोंट हैव दैट बैकग्राउंड तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है और उसके बाद सॉलिडिटी सीखनी शुरू करें बेसिकली। ओके ओके, थैंक यू अमित सर। अच्छा, अभी कोई और क्वेश्चन हो? मेरे पास भी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पहले मौका दे दिया जाए। कोई और क्वेश्चन है तो अपना रेज हैंड कर ले, वरना फिर मैं मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, मैं एक एक करके मैं कोशिश करूंगा मैं पूछना शुरू कर लूँ। ओके ठीक, तो प्लीज अहमद साहब, मियां अहमद साहब, प्लीज अनम्यूट योर माइक और क्वेश्चन पूछ ले। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, स्पेसिफिक रहिएगा प्लीज क्वेश्चन में, ठीक है जी? प्लीज जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे कि मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर हूँ, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम भी कुछ डिस्कस किया हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर। जी तो मैं बेसिकली ये चाह रहा था कि अब मैं डैप के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो हमें हाइपर लेजर की तरफ ज्यादा मूव करना चाहिए या सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ देखना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। जैसे हमने बात की थी ना के जी, प्राइवेट एंड पब्लिक। अगर आप प्राइवेट में कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, देन आप हाइपरलेजर की तरफ जाएं। अगर आपने पब्लिक कोई चीज बनानी है तो आप इथेरियम की तरफ जाएं। अभी तो ये दो चीजें हैं, बल्कि मैं तो एक और जो मैं ज्यादा फोकस कई दफा कह रहा होता हूँ कि जी कोई नया प्रोटोकॉल डिजाइन करें, अपना कोई प्रोटोकॉल डिजाइन कर लें। और खसूसन जो आप जैसे माशाल्लाह जीनियस प्रोग्रामर्स हैं बासित भाई, ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है कि उनको ना अपने प्रोटोकॉल्स की तरफ जाना चाहिए ज्यादा, ताकि जो है ना वो और अच्छे तरीके से चीजों को बेहतर कर सकें और अपनी ब्लॉकचेन की तरफ जाना चाहिए। दैट्स माय जी पॉइंट। चले चले, ठीक है। थैंक यू मियां अहमद सर, थैंक यू। इस वक्त कोई और अगर क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड कर लीजिएगा। मैं पहले अपने क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ, कुछ चंद है, ज्यादा नहीं। अच्छा, एक हसन साहब ने लाइव सेशन में पूछा था, कैन इट बी यूज्ड विद एनी ईआरपी सॉफ्टवेयर? ब्लॉकचेन को ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? ये भी देखें, जब शुरू में चीजें होंगी ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, हम्म, ऑब्वियसली आप पूरा डेटा यकदम नहीं किसी जगह पे शुरू कर देते। आप क्या करेंगे, उसमें एक जिसे कहते हैं लेयर बनाएंगे उस चीज की, जिधर से ईआरपी सिस्टम डायरेक्ट कनेक्टेड होगा कि जी वो अपना डेटा इसके ऊपर फेंकना शुरू करेगा ब्लॉकचेन पे, डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर। और अपना पुराना डेटा आप उस ब्लॉकचेन पे फेंकना शुरू करेंगे, फिर आप लोगों को उसकी एक्सेस देनी शुरू कर देंगे। अभी जो है ना वो हमारे यहाँ एक्चुअली एक होता है कि शायद हम ओवर द नाइट चीज चेंज कर देंगे। ओवर द नाइट कभी चीजें चेंज डिजिटल ट्रांसफॉर्म नहीं होती, या कोई नई टेक्नोलॉजी आप नहीं अपना पाते। तो यस, आप शुरू में इसी तरीके से कोई लेयर बना के उसके ऊपर चीजें फेंकनी शुरू करेंगे, देन आप आगे की तरफ मूव होंगे। ठीक है, गुड। क्योंकि इससे आसपास ही मिलते जुलते काफी क्वेश्चन थे कि ओरेकल के साथ हो सकता है, ये सैप के साथ हो सकता है, ये इसी तरह के क्वेश्चन थे। तो मैंने उसको सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया ताकि उसको आसान कर ले। अच्छा, सेकंड इससे मिलता जुलता ही है कि इस वक्त अकाउंटिंग के क्लाउड सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं अकाउंट्स के। तो क्या ब्लॉकचेन को अगर कोई कंपनी लाना चाह रही है तो अकाउंटिंग के जो क्लाउड सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंटीग्रेशन का क्या सिलसिला होगा? देखें, आपने डिफरेंट नोड्स बनानी है ब्लॉकचेन में, डिफरेंट नोड्स बनती हैं। आप वो क्लाउड की नोड भी एक नोड बना दें। ओके, एक नोड आप अपने पास रख दें, एक दोस्त के पास रख दें, एक काशिफ भाई के पास पड़ी हो, एक अहमद भाई के पास पड़ी हो, एक हसन भाई के पास पड़ी हो, ठीक है। और एक वो वाली जो आपने पहले से बनाई है वो क्लाउड पे पड़ी हो। बाद में आप वो क्लाउड को खत्म करके तो बाकी सारी चीजें शिफ्ट करनी शुरू कर दें। तो बेसिकली वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ना सारी की सारी। सही है, सही है, सही है। ये सदीक साहब ने पूछा था सऊदी अरब से। हम्म। बाकी आपने अपने जो सेशन है उसमें इसका वैसे जवाब दे दिया हुआ है, लेकिन बैंक की तरफ से, बैंकिंग साइड से काफी क्वेश्चन आए थे और वो रेलेवेंट थे रिस्क मैनेजमेंट से, कि हम ब्लॉकचेन को जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट को ज्यादा कम किया जा सकता है, इस पर इम्पैक्ट आ सकता है। इस पे 4-5 क्वेश्चन थे और काफी डिफरेंट कंट्रीज से थे। अच्छा, ज्यादा कम इसका जो है ना रिस्क मैनेजमेंट, देखें आगे जो दुनिया शुरू होने वाली है ना आज से 1-1.5 साल बाद, वो दुनिया बड़ी मजे की है। उसमें 80% डिजाइनिंग है सिर्फ।
और 20% आपकी प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट या ऑपरेशंस हैं। आपने सारी चीज को डिजाइन इस तरीके से करना है कि जब आप डेवलप कर रहे हो तो कोई मसला ना आए। तो ये 80-20 का पूरा रूल शुरू होने लगा है और 1-2 सालों में। लोगों को पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही। चले, दैट्स गुड, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन था जो कि जब आया तो मैं भी थोड़ा हैरान हो गया। वो लिखा हुआ था, ऑडिट की तरफ से था, मलिक जुबैर साहब है, उन्होंने भेजा था। वो क्या था कि ब्लॉकचेन आएगा तो ऑडिट का प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। नहीं, प्रोफेशन कभी खत्म नहीं होता। प्रोफेशन सिर्फ जो है ना, जिसको आप कह लीजिए एफिशिएंट हो जाता है। देखें, मैंने अभी एचआर की बात की थोड़ी देर पहले, तो क्या उससे एचआर की जॉब खत्म हो जाएगी? देखें, एचआर, अगर मैं एचआर के इकोसिस्टम को समझता हूं ना, एचआर के बंदे का काम नहीं है कि सीवीज को स्क्रीन करे, उसका काम कुछ और है। उसका काम एफिशिएंट, यानी कि लोगों को एफिशिएंट बनाना है। लोगों की जो कंप्लेंट आती है ना, वो जो थेरेपी बेसिकली दे रहे होते हैं, एचआर का काम वो है। हमने लोगों को लगाया हुआ, वो एमबीए किया होता है बच्चे ने, और उसको लगा देते हैं तुम सीवी स्क्रीन करो, तो वो उसको एफिशिएंट कर देगा। तो इसी तरह जो ऑडिट का काम है वो एफिशिएंट हो जाएगा, खत्म नहीं होगा कभी भी। वो देखें, अब चीजें आनी शुरू हो गई। प्रोसेस किसको पता है? ऑडिटर को पता है। तो ऑडिटर तो वहीं पे बैठा हुआ है। वो जैसे एक्सेल के आने से ऑडिटर का काम खत्म हो गया, पावर बीआई के आने से ऑडिटर का काम खत्म हो गया? नहीं, एफिशिएंट हो गया। सही है। तो मैं इसको जॉब कोई खत्म नहीं होगी कभी भी। ठीक है, मैं इसको रिट्रेट कर लूं तो जो जो होता है नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी और बेसिकली। हाँ, और प्रोडक्टिव एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसमें जैसे इंसान की अपनी थिंकिंग एक एबिलिटी मजे आ की जाएगी। बात बताता हूं, जैसे मेटावर्स आजकल बड़ा वर्ड चला हुआ है, लोगों को पता नहीं मेटावर्स क्यों नहीं समझ में आ रहा। मैं समझा समझा के थक गया लोगों को मेटावर्स समझ। ठीक है, हालांकि कुछ नहीं है, एआर वीआर हम बड़े अच्छे से यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब मेटावर्स के अंदर, यानी क्या दुकानें बंद हो जाएंगी जब वो अपनी, सपोज करें एक किसी ब्रांड का नाम ले लेते हैं, नाइकी। फिलहाल मैंने पहले भी नाइकी की मिसाल दी थी। नाइकी अपना मेटावर्स लॉन्च कर देता, ठीक है, आप जाएं, आप उधर गेम्स खेलें, आप उनका स्टोर है, स्टोर में चले जाएं। आपने तो सिर्फ ग्लासेस लगाए हैं, आप असल में तो नहीं गए हुए। जाके आप जी वहां पे आपका जो एवटार है बिल्कुल इसी तरह का वहां पे नजर आ रहा है। आप शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग को देख रहे हैं कि ये जैकेट मुझ पे कैसी लगती है, टी शर्ट। आप गए तो नहीं हुए, आप सिर्फ उसको चेक करते हैं, आप ऑर्डर करते हैं भाई। तो क्या जॉब, वो दुकान खत्म तो नहीं हुई? दुकान तो उधर ही है। क्या ख्याल है? नहीं, बिजनेस सही तो बात खत्म है। नहीं हुआ, बिजनेस तो वहीं का वहीं खड़ा, बल्कि और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मेरा वो जो टाइम है ना, जाना है, परचेज करके लाना है। जैसे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैंने बूट परचेज करने हैं, पिछले कुछ 3 हफ्ते से मैं प्लान कर रहा हूँ, जाता हूँ, नहीं जा पा रहा। तो व्हाई नॉट मैं जी उसका साइज वगैरह यहाँ पे मेटावर्स के थ्रू मैं चेक करूं, और मैं ऑर्डर कर दूं कि भाई मुझे घर पहुंचा दो। क्या ख्याल है? नथिंग एल्स। हाँ, सही है। ये बेसिकली चंद चीजें थी, और डेफिनेटली जो इस वक्त पार्टिसिपेंट हैं उनके भी जो जहन में चंद चीजें होंगी वो भी काफी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। मैं बेसिकली जो आपने एक हैंड रेस एक और आ चुका हुआ है असगर साहब का, तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिए और थोड़ा स्पेसिफिक रहिएगा, ठीक है असगर साहब, प्लीज। सर वो क्वेश्चन में वही पूछना लास्ट में चाह रहा था कि क्या हम लोग भी यहाँ पे अपना शेयर कर लें ताकि हम आपस में भी कनेक्ट हो जाएं, सो दैट वी कैन शेयर आवर थॉट्स एंड ऑल दैट। नहीं, जरूर। मैं उस पर आ ही रहा था, बल्कि मैं अहमद मंजूर साहब ने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी और अभी ऐसा करेंगे कि इसको, मेरे पास सबके वर्किंग तो है इस वक्त, सबकी शेयरिंग है, तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब शामिल हो सकते हैं। जो पोस्ट आएगी उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो वो सारे लोग शामिल हो सकते हैं। हम अहमद मंजूर साहब से रिक्वेस्ट कर लेंगे वो थोड़ा सा गाए बगाहे हमें गाइड कर दें, और अगर डेफिनेटली इसमें जो बिजनेस और फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं, ये एक इमेजिन, ये टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें भी साथ में आना ही है, कहीं ना कहीं आना है। तो हम अहमद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें कोई डिटेल एक सेशन भी कर सकें, और डेफिनेटली वो एक ट्रेनिंग टाइप होगी। तो हम इस तरह का भी कोई प्लान कर लेंगे जिसमें एक डिटेल ट्रेनिंग टाइप भी वर्किंग हो सके। तो हम बल्कि हम इंशाल्लाह एक काम करते हैं काशिफ भाई, हम ना एक हम्म, ट्रेनिंग, बिकॉज मेरा दिसंबर बहुत बिजी है, दिसंबर में मैं वादा नहीं करूंगा। हम जनवरी 2022 में सीबीडीसी की ना, एक सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज विद फिनटेक, पूरी ट्रेनिंग लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका ब्रोशर और ये तमाम चीजें जो कंटेंट है वो भिजवा दूंगा।
ठीक है, Right. आप उसको लॉन्च कर दें एंड जो लोग उसको चलो। ज्वाइन करना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह। जरूर जरूर, बेहतर है ये, अच्छा आइडिया। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, और ग्रुप भी बना लेते हैं और ये चीज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सब पार्टिसिपेंट्स का, खास तौर पे अहमद साहब का, उनके कीमती वक्त का, कि उन्होंने ये कीमती वक्त दिया। और इंशाल्लाह वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम अमेजिंग टॉपिक्स फ्रॉम अहमद साहब। खाली वो ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट के अलावा भी काफी हैं, तो हम उनसे कभी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी काफी ज्यादा, उनके बॉक्स में काफी ज्यादा टैलेंट्स हैं, तो हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन को फिर प्लान करेंगे। इंशाल्लाह, टेक केयर जी, टेक केयर, थैंक अल्लाह यू, हाफिज, थैंक अल्लाह यू वेरी हाफिज, मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।